और रोहित कैसे हो? हाउ इज इट गोइंग? All good, all good. I guess it has been a long time since we last did our podcast when India won. So Yeah, मतलब अब I guess 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं. yeah. It was a good departure from Test cricket, and there was some cricket happening across the world. So ideally, Pakistan was beaten by West Indies after 34 years, and then South Africa toward Australia, and then they also had a ODI victory against Australia. So those are the two highlights of cricket which has been happening across the world. Apart Also from there that, is hundred, 100 other there is a matches. hundred, There hundred is a happening. 100, yeah, yeah. There is a 100 that is happening, which I don't care what kind of cricket that is. Neither do I understand. So ideally, we should talk about the Asia Cup selections and the kind of Yes. squad which ideally Ajit Agarkar and Gigi Bro has selected. So where do we Okay. start? From where do we start? Like first of all, like at the outset, let me tell you that there have been two major exclusions, which have been Yes. our guy Shreyas Iyer, who sort of single-handedly took Punjab to the finals with his great captaincy and then batting. The way he has batted in the second qualifier or the eliminator, whichever that match was, that was brilliant. And then the other exclusion has been Yashasvi Jaiswal, a million Yeah, I dollar think boy, a $1 million boy could not make this squad. for Shreyas Iyer, I don't get at all. I don't get the logic. Like, what are your performance parameters for selecting a T20 team? Is it not IPL? Is it not Syed Mustaq Ali Trophy or any other trophy where Shreyas Iyer has done better than any other player that is there in the team? I just don't understand. Where do you use are selecting the players from? What is the performance that you are seeing for which player? Is it the same parameter for everyone, or is it a different parameter for a different position? I don't get it. Like nobody in their sane minds who has followed what Shreyas Iyer has done for last 2 years would afford to keep him out of the team. So that's a very surprise exclusion, and I don't know what Gigi is thinking. Or I don't know what Agarkar is thinking. To that matter, I don't know what Suryakumar Yadav was thinking because Suryakumar Yadav will also have a say. Like you would want a like dependable player like say in middle. And like to your point, Surya Kumar Yadav and our guy Shreyas Iyer play for the same team in Syed Yeah. Mustaq Ali Trophy, and then they have also shared the dressing room for Mumbai, playing for Mumbai. Man, like if I was Surya Kumar Yadav, and if I had to break this news to Shreyas, that brother, you are not able to make the squad, and then on top of it, Ajit Agarkar comes back and tells if he plays, then on Yeah, whose place will he play? Like, is that that is the kind of logic? Is that the kind of argument? Is that the kind of you know POV you could have and you could voice in the press? I don't know. I don't know. I don't know. And there are like okay, let's also talk about Yashasvi Jaiswal. I think he Okay, also deserves a place. It's not as surprise as Shreyas Iyer, maybe because we now have two, three, four players who all want to play at the top. So I understand there's a lot of competition. You have Sanju Samson, Subman Gill wants to play at the top. You have maybe Sai Sudarshan like going in the future. So there's a lot of race for first two, three spots. Three is going should go to Tilak Varma. So you don't have three. If I was the captain, three will always go to somebody like Tilak Varma. So that I understand to a bit. Okay, on top two positions, there's a lot of fight. So that's why Yashasvi Jaiswal could not make the cut. Still, to some extent. But okay, if you okay, okay. see, I'll cut you here. Will Sanju Samson get a game? I don't think so. It will Sanju Samson will again not get a game, I guess, mostly until unless somebody does because it's a very short format. There are not too many matches. If it was a long game where there was a round robin and everybody plays everybody and stuff like that, maybe if somebody does not do well for a couple of games, you give Sanju Samson a chance. Right now, I don't see him playing. Where will he play? I don't think so. I don't think so. So the only place which he had was to open the innings, right? Yeah. Now with Shubman Gill coming as a vice captain, and he has been named a vice captain, that means that he's an automatic selection in the 11. Yes. Now Yes. Jitesh Yes. Sharma will have to keep wickets,
And this is something which I don't understand. Jitesh Sharma had a very great IPL, right? He single-handedly won that match. Fair. Fair, fair. Now, Jitesh Sharma is being measured on his IPL performance, but the same logic does not apply to Shreyas Iyer or Yashasvi Jaiswal. How does that work? Means in what world, in what universe that works? Tell me that. It does not. That's what I was so surprised. Like if you see the IPL performances, I think in India at least, that's your parameter because you don't play too many T20 matches. You only play them when there is a World Cup cycle of T20. Otherwise, you don't play in too many international cricket like T20 matches. So the only parameter of performance is IPL, and that's where it all does not make sense. That's where a lot of people are trolling, saying that no, like either there is some kind of a, I don't know, politics in the game, because I don't see any other reason that other than some kind of internal politics which I don't understand where it stems from. Because I was hoping somebody like Gautam Gambhir, who was a coach when Shreyas Iyer was a captain, right? They have worked together Yeah. more Yes. than anybody else. He should know what is the true potential of that player as a captain, or maybe as a senior player in the team who can help the captain, give good advice. Punjab has Correct. not been there in final for 11 years, and he did it. He's Yeah. one of the successful captains. If you remove Rohit Sharma and Dhoni, tell me who has become more successful as a captain than him, other than MS Correct. Dhoni and Rohit Sharma. So Goes without saying. I totally agree with you. That's where that's where I'm shocked. I want such a player in my team, even if he's not the captain or vice captain, he can still give you very good input. And with the World Cup happening here in India and Sri Lanka, I think that's the player you to have in your team. And I don't So know, but yeah, please go there ahead. is this there is something which I want to discuss with you. Like I understand that India is trying to find an all format captain, and that's what Shubman Gill already is the vice captain in ODI. Shubman Gill has been named vice captain in T20 internationals. But there are teams across the world which have multiple captains for formats. And when you burden a young player like that, so okay, India won the last test. We came back 2-2. We were all very happy. Imagine a world where we had lost that, you know, the game, last game. How would that have come out to be? 3-1 loss, young captain, and just because we won that last test, now you are giving more responsibilities on this young guy. He, if like Shubman Gill is a great player, very good player, prince of Indian cricket, whatever. But if I were to compare apple to apples, I would have taken Shreyas Iyer ahead of Shubman Gill, because Shubman Gill here is going to bat, open your innings. But your Shreyas Iyer is your number four. Number Now four, he's also a floater. He's also a he's also floater a floater. Yeah, sometimes. yeah. So essentially, by selection of Subman Gill, what Gigi and Agarkar have done, they have jeopardized two players. They have jeopardized Sanju Samson, and then they have jeopardized uh, our guy Shreyas Iyer. And these are like over last 5 years, these are the two guys who had most unfortunate luck in terms of selection. Sanju Samson, Yeah. you already know what is the story with him, and it keep on continuing. Like, see, I do not have a problem with Subman Gill being in the team, but it should not be at expense of Sanju Samson not playing or Shreyas Iyer not being in the team. It is at the expense of giving leadership. And again, Yeah, because in India, we in Indian cricket we have a problem of too many problem of choices. So I understand being Agarkar also is a very tough position to be in. He is not but the I don't think old. the other point is like I don't think T20 captaincy transfers that way, like in Test or ODI. See, Hmm. I know you're looking for all format captain, but that is not necessary in today's T20 world. You don't need to have a captain who has too much captaincy experience. Suman Gill won in first and second, like he won one of the IPLs and he was final in the other. So what I'm telling is, okay, for Test and ODI, I understand you need a little experienced captain, but the same captain does not need to be captain in T20. T20 is a format that does not deserve the same kind of thinking when it comes to captaincy or when it comes to coach.
Like we were That is talking true. about, you don't need a coach today. In T20, the Mhm. coach's job is just to sit and maybe figure out 5 things, nothing more than that. You have seen IPL, how many coaches have provided input or done anything good for their team. Always, if you see any other team other than CSK and MI, if they've been in final or have won a final, it is because of the captains. So Yeah, that's yeah. where I'm So coming from. like a lot of players have played as captain coach. Look at Shane Warne. Look at Rahul Dravid. Look at Anil Kumble. These people were not just captains; they were also the coach. They are player coach, player captains. It was like that. चलिए एक Okay, और बात I will करते हैं, also. हाँ हाँ, एक और बात करते हाँ, हैं जो बोलो कि बोलो. जो थोड़ा फनी है मेरे लिए, मुझे को तो काफी इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे काफी सारे मीम दिखे कि हाँ पाकिस्तान ने हाँ. फाइनली जिम बाबर और जिम्बाबर और रिजवान को जो है बाहर निकाल दिया. एंड हाँ, आई थिंक जिम्बाबर. इट टुक लॉट ऑफ टाइम. जिम बाबर के साथ तो ऐसा हो गया कि आफ्टर हिज ओडीआई सीरीज इन वेस्ट इंडीज उसको सीपीएल टीम भी नहीं ली. रिजवान को तो कोई सीपीएल टीम ले भी लिए, तो जिम बाबर के साथ तो बहुत खराब हो गया. और बहुत सारे सोशल मीडिया पे वो चल रहे हैं कि जाते ही उसने दौड़ना चालू कर दिया अपनी फिटनेस के लिए और नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा है. इट इज सो फनी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ लाइक उसमें से कितने सारे रूमर्स ट्रू हैं, बट यार इट इज मतलब फनी तो था काफी मेरे लिए. जब मेरे को पता चला जिस दिन ड्रॉप हुए, आई जस्ट वाज लुकिंग फॉर दोज मीम्स ऑन ट्विटर पे देख रहा था, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, तो दैट्स समथिंग. एक और आकिब बात जावेद करते हैं. उनका उनका हाँ, सेलेक्टर आकिब जावेद है. सेलेक्टर या कोच आई डोंट नो. सेलेक्टर है शायद. ओके आकिब जावेद ओके. है. और अगर पाकिस्तान हार गई तो वो जो एक पूरा मजमा है ना पाकिस्तान में, जो जिम बाबर और रिजवान के साथ रहता है, वो आके इनको गाली देगा. एक और बात करते हैं. दिस इज अगेन फ्रॉम ये T20 वर्ल्ड कप अपना जो है अगले साल 2026 में इंडिया श्रीलंका में हो रहा है. तो Okay. क्योंकि उसके पहले शायद हमने काफी T20 खेल रहे हैं उसके पहले, आई थिंक 20 के आसपास T20 खेलेंगे अपन. तो जो भी टीम आ रही, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, हर जगह T20 है. तो एक बात यह है कि क्या ये आपकी बेस्ट टीम है T20 के हिसाब से, जो कि अब साइकिल चालू होना I don't चाहिए think यहाँ so. से आपको. I don't think so. I don't think और so. दूसरा क्वेश्चन, क्या आप श्रेयस अय्यर T20 वर्ल्ड कप में खेलने के उसके चांसेस 50% से कम हो गए? For बिकॉज ही that, डिड नॉट गेट सेलेक्टेड. India will have to lose Asia Cup. कैसे हारेंगे यार? कौन सी टीम है सामने? तुम देखो ना, पाकिस्तान भी अच्छा नहीं खेल रही, कौन हारेगा? All you need is one freak game, one freakish performance from somebody, and then इनकी जितनी थीसिस है ना सब टूट जाती है ना. ऐसे सिलेक्शंस के साथ यही प्रॉब्लम है कि एक ब्रोकन थीसिस से गेम चेंज हो जाता है. जब हम सेमीफाइनल में भी आ रहे थे पिछली बार पाकिस्तान से 152 for 0, सेम हुआ था ना. आप केएल राहुल को रिटेन कर रहे थे, केएल राहुल को खिला रहे थे. आपका जो टॉप हैवी गेम था, तो टॉप हैवी स्लो करता था. कोहली हमेशा स्लो खेल रहा था, राइट? एंड दैट्स व्हाई यू कुड ओनली स्कोर 152 एंड देन यू लॉस्ट. एंड देन व्हाट हैपेंड? एसेंशियली यू कुड अंडरस्टैंड कि अच्छा देयर इज गोइंग टू बी अ डिपार्चर फ्रॉम दीस प्लेयर्स. नहीं, लेकिन डर इस बात का ना, लेकिन डर इस बात का ना कि अगर जीत गए एशिया कप, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस टाइम पे मेरे अनुसार से, तो एटलीस्ट वो फ्री गेम अगर नहीं मिला तो फिर तो यार ये मतलब बहुत ही बुरा हो जाएगा अपने लिए. क्योंकि अगर डाउन द रोड आपको लास्ट के 5-10 मैचेज में रियलाइज हुआ, जब आप ऑस्ट्रेलिया को खेलोगे, जब साउथ अफ्रीका, दिस इज नॉट माई बेस्ट 11 और माई बेस्ट 15, तब रियलाइज होगा. एंड देन दे विल बी टू अफ्रेड टू मेक दोस चेंजेस. क्यों? क्योंकि इनको अपनी साख बचानी होती है ना. ये लोग मतलब अपनी कुर्सी भी बचा रहे हैं. तो ये मुझे इस बात का दिक्कत लगता है कि ये अच्छी, this is not my best 15 players that will play in the T20 World Cup. If you ask me, I'll tell you something. This team has so many finishers, right? Too many. अभी मेरे पास हार्दिक पांड्या भी है. वो अब चोट लग गई उसको तो गेंदबाजी नहीं करेगा, राइट? मेरे पास शिवम दुबे भी है, मेरे पास रिंकू सिंह भी है, मेरे पास जितेश शर्मा भी है. अब जितेश शर्मा को मैं विकेट कीपर की तरफ ब्रैकेट करूं या फिर फिनिशर की तरफ ब्रैकेट करूं? शिवम दुबे को मैं पिंच हिटर की तरफ ब्रैकेट करूं कि अच्छा ही आल्सो बॉल्स 130, समटाइम्स ही टेक्स विकेट. आई वांटेड लाइक अगर पूरी स्क्वाड देखो तो प्रोबेबली द ओनली गाय विद all the tools in batting is Shreyas Iyer, and he has not made the cut. वही तो बोल रहा हूं कि ये कोई किसी ने बोला भी था प्रेस में कि शिवम दुबे इसलिए कि वो बॉलिंग करता है. यार शिवम दुबे की बॉलिंग की जरूरत आ गई ना तुम्हें किसी भी T20 मैच में, कि शिवम दुबे पे तुम डिपेंड कर रहे हो ना, कहानी खत्म है तुम्हारी. और अगर वो नॉकआउट मैच हुआ, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हुआ वर्ल्ड कप का,
तो जिंदगी भर फिर शिवम दुबे पे एक कलंक लगता, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ही इज नॉट, उस अच्छा बॉलर नहीं है यार वो, आपने बॉलिंग करते देखा है उसको, ही इज नॉट ए गुड ऑलराउंडर। ठीक है, जब पिंच हिटर आप रखना चाहते हो मैं समझ सकता हूँ बात, तो पिंच हिटर रखना तो जितेश शर्मा है ना ऑलरेडी यार, क्या 4 पिंच हिटर चाहिए क्या एक ही T20 गेम में? हाँ नहीं, वही आपका नहीं समझ ऊपर में आ रहा है, मतलब अरे यार वही नहीं समझ में आ रहा है। दिस इज द सेम द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ये जो टेस्ट मैच में कर रहे थे ना, बैटिंग 9 नंबर तक चाहिए और उसके कारण गेम हार जाएंगे ताकि विकेट नहीं मिलेगा, है ना। यार बैटिंग थोड़ा कम रख लो, अक्षर पटेल भी है तुम्हारे पास, है ना। अब ऐसे समझो, अगर तुम गेंदबाज हैवी रखोगे लेट मिडिल ऑर्डर, तो अब कोई ऐसा गेम आया जहां पे वरुण चक्रवर्ती भी खिलाना है हमको और कुलदीप भी खिलाना है, तब तो ये वो कॉल भी एक लेंगे। पॉइंट। हाँ हाँ, तब तो ये कॉल लेंगे कि वरुण चक्रवर्ती तुम्हारा पावर प्ले में आके बचाता है, ठीक है, कुलदीप तुम्हारा मिडिल ऑर्डर का मिडिल ओवर्स का बॉलर है, और मतलब यस मैच भी कहाँ हो रहा है, मैच भी डस्ट बोल में हो रहा है, सारे मैचेस या तो अबू धाबी में या फिर दुबई में है, और गेम्स यस वैसे ही रहेंगे, बारिश होगी नहीं, पिच जो है उसमें नमी भी नहीं रहेगी, राइट। तो अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आई थिंक इन मोस्ट गेम्स यू विल गो विद 2 spinners and both of these Varun Chakravarti, because he has won you single-handedly Champions Trophy, to be very honest, हाँ हाँ right? हाँ Apart from Shreyas Iyer, cool, yeah. यस So Varun Chakravarti is making the cut, and if you don't take Kuldeep Yadav in T20s, I don't understand from what mind are you coming. Then यार, ये look at दोनों other को खेल, bowlers. हाँ Look at देखो other मैं तो bowlers. कह रहा हूँ, Harsh, जैसे go on, जितना tell me. तुम, हाँ जितना तुम, जैसे दिक्कत क्या है ना कि कभी कभी 3 भी खिलाने पड़ सकते स्पिनर, और तीसरा स्पिनर अगर अक्षर पटेल है तुम्हारा, तो तुमको यार और एक्स्ट्रा बैटिंग और क्यों चाहिए? अक्षर पटेल क्या खराब बैटिंग थोड़े करता है किसी खराब और भी ऑलराउंडर जो बैटिंग तुम, करता है। हाँ, ये वही तो दिल्ली वही तो दिल्ली कैपिटल्स को कितना बढ़िया यार वो मतलब कप्तानी किया है, और इतना बढ़िया बल्लेबाजी हाँ किया है यार। यस, पूरे आईपीएल में उसके भी कंट्रीब्यूशन देखो, भले वो 30 रन बनाता था, बहुत क्रूशियल 30 रन बनाए हैं उसने बहुत बार, इस आईपीएल में बता रहा हूँ 4-5 बार बनाए हैं, विच इज अ वेरी गुड अरे यार रेशियो इन 10 मैचेस। हमको क्या लगता है ना, ये लोग साला खेल रहे हैं क्रिकेट T20 और सिलेक्शन कर रहे हैं फुटबॉल की तरह, है ना। नहीं, सच बता रहे हैं, फुटबॉल की तरह सिलेक्शन करना है तो फुटबॉल का टीम बनाओ। अगर फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है तो बढ़िया टीम बनाए हो, है ना। डिफेंडर मिडफील्डर क्या है, मतलब ऐसा है कि अगर कोई विंग पे खेल रहा है तो वो पीछे तक आए, है ना, 90 मीटर दौड़े। अरे 90 मीटर नहीं दौड़ाना नहीं चाहिए तुमको, शुभमन दुबे, शिवम दुबे, तुमको शायद अगर कीपर चाहिए तो एनी डे सैमसन इज अ बेटर कीपर, राइट। यस बट द थिंग इज, तुम एक सिलेक्शन के कारण, एंड आई लाइक शुभमन गिल, बट एक सिलेक्शन के कारण तुम अपना कॉम्पोजिशन बदल के रख दे रहे हो। तुम रखते नहीं यार, और कहीं एक रिजर्व ओपनर रखते, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा रिजर्व ओपनर कौन है? तुम्हारा रिजर्व ओपनर शुभमन गिल होता इफ यू हैड जायसवाल इन द स्क्वाड, तो 3 में से एक सिलेक्शन होता। अब तुम शुभमन गिल को अंदर रख लिए तो संजू सैमसन को जगह नहीं है ना। यशस्वी जायसवाल बाहर ही हो गया, यशस्वी जायसवाल बाहर ही हो गया। श्रेयस अय्यर क्यों, को जगह मतलब मिली क्या नहीं। मतलब, ऑलराउंडर क्यों चाहिए? इतना बढ़िया बॉलिंग तो कोई कर नहीं रहा है। हार्दिक पांड्या के अलावा आई डोंट थिंक एनी ऑलराउंडर्स इन दिस, हार्दिक पांड्या एंड अक्षर पटेल ऑफ कोर्स, एनी यस ऑलराउंडर्स व्हिच मेरिट अ लिटिल बिट ऑफ बॉलिंग, जिनको आती है, उसको अगर जगह मिल रही है तो इट मेक्स नो सेंस टू मी। और फिर वही जीजी भाई बाद में आएंगे, जीत जाएंगे बेवकूफ टीमों के सामने, हांगकांग से मैच होगा और नेपाल से मैच होगा, जीत जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे वाओ, सी वी आर नहीं नहीं, प्लेइंग फॉर द लेकिन नेशनल टीम। मुझे मुझे दिक्कत एक तो जीजी भाई का एक और बात बताता हूँ, उनको फुटबॉल भी अच्छे से नहीं समझ में आता है। उनसे पूछा गया था ना एक बार कि आपको मेसी और रोनाल्डो में कौन पसंद है, तो बोल दिए मार्कस रैशफोर्ड, तो उनको फुटबॉल भी नहीं समझ में आता है। और दूसरी दिक्कत है कि एशिया कप से मुझे उतना मतलब, चलो एशिया कप इज नॉट दैट बिग अ थिंग फॉर मी, लेकिन मुझे दिक्कत है कि अपना T20 वर्ल्ड कप, तो आपको जितना आप अच्छा T20 खेले हो पिछले 2-3 साल में, तो साला अगले 2 T20 वर्ल्ड कप तो कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, जैसे साउथ अफ्रीका खेल रही है ना, जैसी खराब टीम हम बनाए हैं, वो जाके ना किसी नॉकआउट मैच में ऐसा फंसोगे ना कि फिर माथे पे हाथ रख के हम लोग बैठ जाएंगे, जो पहले होता था हमारे साथ, जो 2007 के बाद से लेकर 2017-18 तक तुम कुछ नहीं जीते, उसमें वो भी प्ले करता है कि आप वो टीम भी एक खराब बना फैक्टर रहे था, हो। हाँ। हाँ कि यार आप हमको कॉम्बिनेशन बैठा लेते हो। हमको क्या लगता है ना, हमको क्या लगता है, हमारे पास जब ऐसे प्लेयर्स थे ना जो टॉप हेवी हुआ करते थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग शायद ये भी मिस्टेक कर रहे हैं ना कि श्रेयस अय्यर को उस बकेट में रख रहे हैं। श्रेयस हाँ अय्यर को अगर तुमको किसी बकेट में रखना है
तुम यार ट्रिस्टन स्टब्स वाले बकेट में रखो, डेवल्ड ब्रेविस वाले बकेट में रखो, ये स्विच कर सकता है क्लासन, गियर यार, क्लासन वाले बकेट में रखो। नहीं, लेकिन इनको जो है ये चूंकि बॉम्बे वाले रणजी उससे आया है, सिस्टम से आया है, तो दे आर कीपिंग हिम इन दैट बकेट और ब्रैकेट। ही शुड नॉट बी केप्ट देयर, ही इज लाइक अ ओके ब्लडी कंप्लीट क्रिकेटर देयर इज। वो भी चलो टाइम हो गया है, एक टाइम की कमी है, एक बात और करते हैं अब। चलो जो टीम सेलेक्ट हो गई है, बस प्लेइंग 11 क्या होगा एक बार बता दो तुम, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से प्लेइंग 11 जो मेरे अपने पास हिसाब से रिसोर्सेज प्लेइंग है? 11 क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ अगर संजू सैमसन से ओपन नहीं करवाए तो उसका करियर हो ओके गया खत्म, ओके ठीक है। ही इज ऑलरेडी 31-32। there is a news in the IPL circles that he is looking to switch teams, right? यस So if you ask me, I would go with Abhishek Sharma, Sanju Samson, right? And he's also your keeper. Then ओके on number 3 you have Tilak Verma. Number 4 में of course you will have Surya Kumar Yadav. Number 5 I think I would have Hardik Pandya. Sometimes Hardik Pandya, sometimes I don't know, maybe Shivam Dubey, because of the composition which you have. Who else would you have there? आई थिंक जैसे चौथे पर तो स्काई सही है, उसके बाद फिफ्थ सिक्स पांचवी पे सेवन अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, ये 3 लोग हैं जो आगे पीछे होते रहेंगे, करेक्ट, डिपेंडिंग ऑन कौन सा गेम है। इनफैक्ट रिंकू सिंह से यार ज्यादा तो मैं जितेश शर्मा प्रीफर करूंगा। आई नो एवरीबॉडी इज थिंकिंग I will take Rinku Singh. That guy has रिंकू गट्स तो ठीक है यार, लेकिन पिछले 1.5 साल से गट्स पे ही है वो टीम में, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा कुछ अच्छा किया नहीं है। इंपॉर्टेंट मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ मार भी देगा तो मैं क्या कर लूंगा उसका, ये भी तो बात, मैं वहां से बोल रहा हूँ। ओके, हाँ तो नहीं, लेकिन हाँ लेकिन ये फ्लोटर है, 5 6 7 ऑलवेज फ्लोटर। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे या जितेश शर्मा या रिंकू सिंह, यही लोग आएंगे। ये 5 अभी में से कोई भी आ सकते हैं। हाँ कोई भी आ जाएगा, 5 6 में कोई भी 3। उसके बाद चूंकि यूएई में मैच हो रहा है, तो आई वुड आइडियली गो विद माय 2 स्पिनर्स। और कभी कभी जब ऊपर अक्षर पटेल खेलेगा तो हो सकता है यू विल ड्रॉप कुलदीप यादव, बट आई वुड नॉट ड्रॉप कुलदीप यादव। आई वुड, मैं तो कह रहा हूँ तीनों स्पिनर से खेलो ना यार, तीनों स्पिनर से खेलो ना यार। वर्ल्ड कप भी यही हो रहा है, इंडिया में ही होना है वर्ल्ड कप, क्या ही दिक्कत है तुमको? वर्ल्ड कप के पीछे जो तो हम ही बनाएंगे ना यार। करेक्ट। तो माय बॉलर्स आर गोइंग टू बी कुलदीप एंड माय गाय वरुण चक्रवर्ती एंड देन अर्शदीप एंड जसप्रीत बुमराह। हाँ दैट साउंड्स लाइक ए फेयर। अगर हार्दिक पांड्या टीम में है और अक्षर भी टीम में है, सोचो कितनी बढ़िया बॉलिंग अटैक भी है यार। यू हैव हार्दिक पांड्या इफ ही इज बॉलिंग, आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास तो प्रॉपर स्पिनर्स हैं जो अभी भी बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती को देखो ना चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया लोग पढ़ रहा है यार। हाँ सही बात है। तो कितनी बढ़िया बॉलिंग अटैक भी हो जाएगी अगर आप ये सब फालतू ये शिवम दुबे को हटा दो ना, तो टीम बढ़िया बन जाएगी। जो दिया है ऊपर तो मैं यार शुभमन गिल अभी भी नहीं चाहता हूँ कहीं, मैं नहीं चाहता हूँ खेले, भले ही वो टीम में मतलब उसको। द थिंग इज ही विल प्ले, तो हाँ वो मेरे को ही पता है। वो गौतम गंभीर साहब हैं, वो गौतम गंभीर साहब हैं। वो जहां से हम देख पा रहे हैं वहां से संजू सैमसन इज नॉट गोइंग टू गेट एनी गेम। मुझे तो लग रहा है ये लोग कुलदीप को भी सारा गेम नहीं देंगे, विच जगह ने सैड थिंग। कुलदीप को भी, कुलदीप के साथ तो उसका भी तो कट ही रहा है ना यार। कुलदीप तो कैरी हो रहा है यार, बेंच गरम कर रहा है, मतलब पता नहीं कब से बेंच गरम कर रहा है यार वो। उसका करियर ना 25% खत्म कर बचा है, अब 75% खा गए लोग यार। अब तक वो ठीक ठाक टेस्ट खेल के ठीक ठाक विकेट लेके बढ़िया जगह पे होता है कुलदीप अपनी जिंदगी में। हाँ किसी भी और देश में होता। अब केशव महाराज उससे बढ़िया बॉलर है क्या, हमको बताओ। बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। केशव महाराज बढ़िया बॉलर है क्या? मुत्थु स्वामी नहीं। और केशव महाराज इन टैंडम बॉलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहे हैं इन टैंडम अभी। हाँ कल वाला मैच देख रहा था। हाँ देखा यस। तो आई एम लाइक यार, यू हैव अ जेम ऑफ अ पर्सन, जेम ऑफ अ क्रिकेटर, एंड देन ही डज नॉट गेट अगेन। यस मतलब अच्छा वाशिंगटन सुंदर वगैरह की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है कि वाशिंगटन सुंदर IPL 11 में भी नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है, हटा दो तुम अपना टीम बताओ एंड देन विल कॉल इट अ डे, है ना। मेरे लिए तो ऊपर ऑफ कोर्स संजू सैमसन। आई वांटेड जायसवाल बट अब है नहीं, तो संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा,
देन यू हैव 3 पे तो मैं यार तिलक वर्मा को वी शुड गिव ए लॉन्ग रोप, वर्ल्ड कप तक तो तिलक वर्मा को 3 पे खिलाते रहो, लेट हिम हैव दैट प्लेस, लेट हिम फील सिक्योर कि वो जगह उसी की है। चौथे पे स्काई, पांचवे पे इवन इफ इट्स फ्लोटिंग थिंग आई वुड वांट पांचवे पे अक्षर पटेल बिफोर हार्दिक पांड्या, पांचवे पे अक्षर पटेल, छठे पे आई गेट योर हार्दिक पांड्या, सातवें पे और छठे पे रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या इंटरचेंज कर सकते हो। Then you get your 4 bowlers, which is for me bowlers are going to be the same. Kuldeep, Varun Chakravarti, and if you have to drop one spinner, never drop Varun Chakravarti. अगर ड्रॉप करना ही है तो आप कुलदीप को कीजिएगा, आपको एक एक्स्ट्रा फास्टर खिलाना है, which I will not suggest, but मेरे लिए वरुण, कुलदीप, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह को तो आपको रखना ही पड़ेगा. He does very well in T20s. So that's my team. बाकी टीम की बात हो गई, बाकी एक दो चीज जो बात हम करना चाह रहे हैं एंड देन विल कॉल इट बिकॉज इट्स गोइंग बियॉन्ड द टाइम. यार Okay. Agarkar has to show some spine. I don't know, maybe it's means I wish I could tell that it is his team, right? It is not. Yeah. It is not, and probably he does not have a lot of cloud behind him, so that could be the case. यार मतलब पता नहीं ये लोग कहाँ से सोचते हैं. मैं मतलब ऐसा सोचना यार, ये लोग सब जो लोग उस पैनल में, सिलेक्शन पैनल में बैठते हैं, कैप्टन बैठता है, हमारा कोच बैठता है, मतलब क्या क्या सोच के गए थे तुम, कैसी टीम सेलेक्ट करने गए थे? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे 5 लोग जिनको क्रिकेट समझ में आता है, 6 लोग जिनको क्रिकेट समझ में आता है, वो मैच मिल के बैठे, 1-2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे और ये टीम सेलेक्ट करके लाए हैं. यार इससे बढ़िया टीम तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता देता ना. आप 5 लोग जो क्रिकेट समझते हो, क्या सोच रहे हो? ऐसा तो नहीं कि आप साइंटिस्ट हो कि कुछ ऐसा सोचो जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. आप साइंटिस्ट तो नहीं हो ना, वैसा साइंस तो नहीं है कि आप श्रेयस अय्यर को इसलिए छोड़ा हो कि मैं वो कुछ ऐसा जान रहे हैं जो मैं नहीं जान रहा हूँ. इट्स अ पब्लिक आई गेम ना, हम लोग सब वही देख रहे हैं जो तुम आदित्य अगरकर देख रहा है हर मैच. तो साला ऐसा क्या डिसीजन ले लिए तुम उसमें कि मेरे को खराब लग रहा था यार. मतलब ये बेवकूफी है और कुछ नहीं है, एज सिंपल एज दैट. आप कितने ही बढ़िया सिलेक्टर और कितने बढ़िया क्रिकेटर रहे हो, आई रिस्पेक्ट दैट. बेवकूफी है तो है भाई, 5 लोग ऐसे मिलकर तुम ये टीम सेलेक्ट करके लाए हो ना. आओ कभी मिलो, मैं बताता हूँ, कभी मिलो तो मैं पूछूंगा. आदित्य अगर कहीं दिख गया बॉम्बे में तो मैं पूछूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि हमको ये वर्ल्ड कप कॉस्ट कर जाए. वर्ल्ड कप ले देखो, टीम तो बनाना नहीं है. हाँ. अब लोगों को मौका दो. बीसीसीआई को खोलना चाहिए कि तुम टीम बना के दिखा सकते हो. बीसीसीआई उससे सेलेक्ट कर T20 में कि मोस्ट जैसे 90% लोगों का जो सेम प्लेयर्स रखे हैं वही टीम इनको बना देना चाहिए. इनको गौतम गंभीर को हटाओ और आदित्य अगरकर को हटाओ. अब सब लोग के पास कुछ काम तो होना चाहिए ना, जो ड्रीम 11 में टीम बनाते थे. तो एक साइड में डाल दो कि यहाँ पे आप अपनी टीम बनाइए, यही देख के हम फाइनल टीम कर देंगे. वो टीम इनके टीम से अच्छी होगी जो इन्होंने बनाई है अभी. सही बात है. और T20 में एक और चीज, और बस एक और चीज ऐड करेंगे. देयर वाज अ लॉट ऑफ चैटर ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज व्हेन वी वन द गेम्स वी वन. वहां पे ऐसा था कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सिलेक्शंस ऑफ जीजी, और हम इसकी बात भी करते हैं है ना. तो शायद उस पूरी चीज में मुझे अपनी एक बात और हमारी एक बात थोड़ी गलत लगी या फिर गलत प्रूव हुई, which was why are we persisting with प्रसिद्ध कृष्णा, राइट? उसके अलावा तो जीजी भाई क्या किए? अंशुल कंबोज को जो है 10,000 किलोमीटर दूर से बुलवा के खिलाए हैं. तो इनका थोड़ा सा ये ईगो भी बीच में आ रहा है. खैर, अब हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, बहुत बड़े नेता पर नेता हुए हैं, है ना. तो अरे नहीं, देखो उसमें भी हमारी बात पूरी गलती नहीं. याद करो, मैं भी बोल रहा था कि अंशुल कंबोज से की जगह मैं अभी भी प्रसिद्ध कृष्णा खिलाता. आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड विद हिम, जितना भी वो मार खाया, जितना भी वो विकेटलेस गया था, मैं फिर भी बोल रहा था कि आप प्रसिद्ध कृष्णा इज योर हॉर्स. ये नए बंदे को लाए हो जो यार अभी मतलब पता नहीं एक्लिमेटाइज भी नहीं हुआ है. और दूसरी है यार, थोड़ा भाषा की भद्रता मेंटेन करने वाली बात है. नहीं तो यार गौतम गंभीर ने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ा है. टेस्ट जो सीरीज हुई है उसमें गौतम गंभीर नहीं होता तो शायद हम लोग 3-1 जीत जाते. अगर हम एक इंटरिम कोच भेज देते, वीवीएस लक्ष्मण जैसा भी, जो कि लेट बैक थोड़ा रहता, आराम से अपना कैप्टन को करने जाता, तो हम लोग 3-1 जीत जाते. और ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ गौतम गंभीर को भी. कभी तो जैसे ये लोग तो दिख भी जाएंगे किसी दिन बॉम्बे में. मेरे को तो वो लग रहा है, मैं पूछूंगा कि भाई क्या सोचते हो तुम, तो इतना क्रिकेट खेले हो, तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा है? इतना सिंपल सी बात है, तुम काहे नहीं समझ पा रहे हो एक छोटी सी बात कि हाँ भाई ये है मेरी बेस्ट टीम. छोड़ो 30 मिनट होने को है. Let's call it a day, and thanks guys for tuning in. Some of you listen,
And while we were not making these videos, some of you texted us, यार बढ़िया कर रहे हो, प्लीज करते रहो, and then we'll try to be regular doing this. But लेकिन थोड़ा सा वो भी है कि यार मतलब दिल टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा लगता है, T20 में उतना लग नहीं पाता. तो खैर अभी लुकिंग फॉरवर्ड और विल सी यू अगेन. चलो रोहित, बाय बाय बोले. Bye bye. Bye bye. Yes, yes. Bye bye. Take care.